ओके, तो जो वाव जो सीरीज है इसका जो पर्पस ये है कि दैट वी कैन इंस्पायर सो मेनी पीपल, जो ऐसे मेंबर्स जिन्होंने दे स्टार्टेड देयर करियर एंड उन्होंने मेहनत करी एंड दे हैव अंडरगोन दी इन अ स्ट्रक्चर्ड वे, gone undergone some training programs, and then they were able to achieve whatever it could be, salary, it could be respect, it could be appreciation. और मुझे लगता है कि Yes. आपने तो ये सारी चीजें, सैलरी भी, रिस्पेक्ट भी, अप्रिशिएशन भी आपको जो है आपके वर्क प्लेस पे मिला और आपकी कार्यस्थल पे मिला. सो दैट इज दी लाइक Yes. पर्पस कि हाउ वी कैन कैप्चर दी स्टोरीज एंड सो दैट अदर इंजीनियर्स like you can also get motivated कि भाई yes we can also do this, and हमें भी अपना जो एक mentoring उनको पता लगे कि भाई कितनी important है, so that they can focus time on the mentoring and self education, and और वो भी अपने करियर में आगे बढ़ सकें, राइट. तो थैंक यू वेरी मच मोहित फॉर कमिंग ऑन द शो. तो मोहित मुझे बताइएगा अपनी जर्नी के बारे में, जैसे आपने जब स्टार्ट किया तो मतलब कहाँ से आपने स्टार्ट किया, एंड फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड, लाइक जस्ट टेक मी Okay. बैक. सर इट्स अराउंड 2013 जब मैंने बीटेक मैकेनिकल से मैं पास आउट हुआ. So during my last semester, I recognized that lines said by my sister कि मोहित तेरे को अगर कहीं पे जॉब में मिल रही हो या कहीं पे जॉब प्लेसमेंट मिल रही हो तो यू जस्ट फॉरगेट दैट. Faridabad is a good place and you are the resident of Faridabad, so you will get better jobs here. Don't go here and there. So I remember, sir, I was at the Mahali group of institution and where I was placed in the job fair at a salary of 15K. But the words reminded that my sister has told me that Mohit, itna to tumhe Faridabad mein bhi mil jayega. When I started my journey in Faridabad, you won't believe, sir, I worked at a salary of 6K. 6K. Initiated my 6K, yes. But in that organization, I have never mentioned in my CV, but in that organization, I learned to assemble the press machines over there. The fabrication and press machines assemblies were there. So with my hands itself, I assembled 65 tonnage press machine over there. And after that, I worked in a Ilofi group. I got a very good opportunity over there, and used to learn the different segments in the quality, receiving inspection. Thereafter, in the receiving inspection, I remember, so we had an audit of ISO TS, and before the audit, when the pre-audits were going on, I just found out one NC. It was my 6 months experience, and I was just studying the sampling inspection plan and found out one single NC over there. When I talked to my QA head, then he appreciated me and immediately he gave me opportunity to work with the QA department. There I learned a lot of things: calibrations, MSA, SPC in the process, rejection analysis, and a lot. Excellent. But So yeah, there, Mohit, I want to ask you, like, जैसे जब you said that you started your career with the 6,000 rupees salary, तो आप like you used to work on your own hand. Like I also remember when I started in the beginning, obviously जैसे engineers को मतलब आज की डेट में उस वक्त भी जैसे लाइन पे काम भी करवाया जाता है और लाइन पे जा जाके इंस्पेक्शन करनी पड़ती है, विच इज नॉट बैड, बट स्टिल मतलब एज ए इंजीनियर अगर आपने किया है तो आई डोंट थिंक इट्स अ यूटिलाइजेशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रोफेशन की अगर आप उसे लाइन पे लगा दें, जैसे आपने बताया कि आप खुद मशीन भी चला रहे हैं और फिर इंस्पेक्शन भी कर रहे हैं. सो लाइक व्हाट वर योर लाइक काइंड ऑफ फीलिंग, आपके उस वक्त दिमाग में क्या आता था कि एक जैसे कि इज इट गुड, इज इट बैड, यार क्या हो रहा है ये कि भाई एज ए इंजीनियर लाइन पे मुझे काम करवा रहे हैं. सर वेरी वेरी फर्स्ट फीलिंग जो कि हर फ्रेशर के मन में आती है, that we have spent lot of money to in our engineering and we are getting a pay of just 6K. The very first feeling कि वर्कर से भी कम आपकी सैलरी है. But only one thing motivates me कि नहीं मोहित, कोई बात नहीं, सैलरी कम है बट आई हैव सम स्किल्स, धीरे धीरे मैं डेवलप करूंगा एंड आई विल ग्रो. आपके मन में सर थॉट था फ्रॉम द कि वेरी स्टार्टिंग आपके मन में इटसेल्फ, थॉट था कि सैलरी कम है, इसकी आपको बुरा लगता था और जो काम करते, बट आपके मन में ये था दैट मैं मेहनत करूंगा, मैं स्किल अपनी बढ़ाऊंगा. आई थिंक दिस थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये दिमाग में होना जरूरी है कि चलो जो भी मेरी सिचुएशन है, शायद बहुत सारे लोग जो इंटरव्यू देख रहे हो उसमें से काफ़ी सारे लोग ऐसे हों जिनकी बहुत कम सैलरीज, जिनकी इस समय भी बड़ी कम सैलरीज में वो हैं या अंडरपेड हैं, बट एक जो थॉट प्रोसेस था आपका कि मतलब कि मेरे को स्किल गेन करनी है, मुझे सीखना है, तो वो आपके दिमाग में मतलब शुरू से था. बिल्कुल सर.
बिल्कुल। और लाइफ लर्निंग है सर, अभी भी सेम स्किल्स रहती है, सेम थॉट्स रहते हैं माइंड के अंदर कि नहीं, वी हैव टू इंक्रीज आवर स्किल्स टाइम टू टाइम। तो दैट्स तो मुझे बड़ी आपने यस सर। ये जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा मोहित कि जैसे अभी थोड़ा जर्नी में जैसे आपने बताया तो ये जो आपके दिमाग में है आई हैव टू लर्न लाइक मैं कहता हूँ कि जैसे कई सारे इंजीनियर्स हमारे वर्किंग प्रोफेशनल हैं और ऐसा और प्रोफेशन में भी होता है कि जब वो जैसे इंजीनियरिंग करते हैं तो काफी लाखों रुपए खर्च होते हैं बट उसके बाद जी जॉब चलो कई बार बहुत कम मिलती है और कभी कभी धीरे धीरे थोड़ा आदमी आगे बढ़ता है धीरे धीरे तो कभी कभी जी वो क्या करता है कि ऐसा होता है कि वो ये सोचता है कि यार मेरे माँ बाप ने मुझ पे खर्च किया मुझे डिग्री कराई या मेरे को डिप्लोमा कराया या उसका लोन लेके भी उसने किया हो बट वो जब जॉब ज्वाइन करता है तो उसकी जो ये सोच होती है कि बहुत सारे मतलब मैं सभी की नहीं कह रहा ऑब्वियसली हमारे सब मास्टरी मेंबर्स की नहीं है वो तभी आगे बढ़ते हैं और सक्सेस पाते हैं बट ये उनकी सोच होती है कि यार अब कंपनी खर्च करेगी अब कंपनी हम पे अगर कंपनी को हमसे कुछ काम निकलवाना है एंड देन कंपनी विल स्पेंड ऑन अस एंड देन दे आर रिस्पॉन्सिबल व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मेंटेलिटी मतलब इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे सर, ये मेंटेलिटी तो बदलनी ही पड़ेगी। मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ शॉप फ्लोर का सर। काफी कंपनीज के साथ मतलब काम करने को मिलता है, अभी तो मैं कई क्लाइंट्स हैं उनके यहाँ काम करने को मिलता है। तो मैं एक वर्कर से भी सिंपली बात करता हूँ कि यार यू आर नॉट वेयरिंग द शूज है, एंड यू आर थिंकिंग कि मतलब कंपनी आपको शूज प्रोवाइड करेगी तभी जो है मैं शूज मतलब मैं पहनूंगा। यू आर मतलब तुम जो है अपनी सेफ्टी के साथ जो है वो खेल रहे हो। इफ यू आर मतलब एक शूज का पेयर एक खरीद करके अगर तुम अपने आप का बचाव कर रहे हो देन यू आर द बेस्ट। सो ये मेंटेलिटी जो है मैं ऑपरेटर लेवल पे भी वर्कर लेवल पे भी आई यूज टू टेल देम कि यार डोंट थिंक अबाउट द कंपनी। कंपनी की जो भी उनका बजट होगा, जो भी उनका मतलब प्लान्स होंगे, दे विल प्रोवाइड एवरीथिंग टू यू एज पर देयर बजट। बट यू कैनॉट इमेजिन मतलब you cannot think that all the trainings, all the things which you are expecting, everything will be provided by the company. One should need to focus on his growth, his मतलब skills। अगर मेरे को वो स्किल एक्वायर करनी है, माई कंपनी इज नॉट प्रोवाइडिंग दैट, सो यू हैव टू स्पेंड सम मनी। दैट्स सो ग्रेट ये एक मतलब काफी, हाँ जी। ये बहुत अच्छी चीज है तो सर मेरे को जी जी ऐसे मैंने कहीं बताया भी कि जैसे मारुति वगैरह में ट्रेनिंग दी जाती है मतलब तो मुझे कि बताया कि वहाँ आलू रख के और एक बड़ा सा एक वेट गिराया जाता है और एक में आलू रखा जाता है और एक में सिर्फ सिंपल शूज मतलब शूज रखा और शूज के अंदर पटाटो रखा और फिर एक बड़ा सा वेट गिरा दिया और फिर दूसरे में जो है वो सेफ्टी शूज के अंदर आलू रखा और बड़ा सा वेट गिराया फिर दिखाया वर्कर्स को ट्रेनिंग में यानी जो भी स्टाफ के लोग हैं ट्रेनिंग में बताते हैं भाई साहब ये देखो ये आलू पिचक गया क्योंकि ये सेफ्टी शूज नहीं पहने था तो नहीं तुम्हारी पहना। पैर की हालत ये हो सकती है तो बड़ा विजुअलाइजेशन सा बिल्कुल दिखाते हैं तो मेरे बिल्कुल ख्याल से वो बिल्कुल चीज स्ट्राइक करती है भाई ये तो करियर तो हमारा ही है तो ऐसे इंजीनियर्स को बिल्कुल मतलब ये है कि भाई कंपनी खर्च करे ना करे कराए ना कराए और तो लेकिन करियर हमारा बर्बाद हो रहा है या फिर हम प्रोग्रेस हम नहीं कर पा रहे हैं तो ये जो आपने कहा एग्जाम्पल दिया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हाँ ये हाँ सोचना बड़ा जरूरी है कि भाई इसमें डिसएडवांटेज हमारा ही है जी सर जी। अभी सर एक छोटा सा एग्जांपल में अभी एक क्लाइंट के साथ मैं डील कर रहा था, तो उनके साथ भी सेम कंसर्न था। यू आर वेरी नोन कि जो प्रेस मशीन्स होती थी मैकेनिकल की पहले, जी इवन अभी भी कंपनीज में कई जगह चलती है दैट फिंगर्स यूज टू कट, हैंड्स यूज टू कट अगर थोड़ा सा भी आपने जो है मतलब सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। बट दीज डेज वेरी गुड सिस्टम्स आर देयर। तो कैम गार्ड्स वगैरह अवेलेबल होते हैं जो कि आपके हैंड को जो है अगर फिंगर्स आगे आ रही है तो वो प्रोटेक्ट करते हैं और स्टे अवे कर देते हैं। तो ये कंसेप्ट अभी हमने रिसेंटली अभी एक क्लाइंट के यहाँ पे लगाया। तो पीपल आर डेफिनेटली दे आर कमिंग अप और दे आर इंस्पायरिंग कि हाँ दिस इज अ गुड थिंग, यू आर प्रोवाइडिंग सम गुड थिंग। सो दैट्स इट तो सर। अब मुझे बताइए जैसे आप 6,000 आपकी सैलरी थी तो ऐसा क्या हुआ कि आप 15,000 की जैसे आपने कहा फिर आप 15,000 पे जंप कैसे आपने ले लिया Sir, I remember the quality head of the Ilofi group. He is slightly known to me. या So उन्होंने जो है मतलब मेरे साथ फेवर भी किया। एक्चुअली वी बोथ आर बिलोंग्स टू अ सेम मिशन, सन निरंकारी मिशन। सो उन्होंने मेरा सिर्फ इंटरव्यू कंडक्ट करवाया एंड आई क्वालिफाइड दैट इंटरव्यू। And but the promotion which I get from the receiving quality to the QA segment, that was on the behalf of that particular NC which I have found out in the तो आपने मतलब during the कुछ audit. इम्प्रूवमेंट करी कमी निकाली तो Yes, उनको लगा यार ये बंदा जो है काबिल है तो देन यू yes, गॉट दैट प्रमोशन yes. And सर 2015 की ही बात है। आई वॉज वेरी मच मतलब आज भी मतलब सेल्फ लर्निंग के ऊपर काफी फोकस करता हूँ, तो उस समय भी काफी था कि यार कि ठीक है स्किल्स बढ़ानी है। But at that time, I was a single earner for my family. My father is very aged,
So I remember, sir, matlab, there was a need. You have to qualify the internal auditor exam, and you need to have the certification as a skill, as a gaining the technical skill. So I came across you. That moment, I cannot, matlab, a feeling of gratitude towards you. You gave me an opportunity to attend that training session in LG Balakrishnan Yeah. without any cost. Yeah. So that moment was really precious for me. So आज भी सर मतलब मन भर आता है, मतलब जब वो मोमेंट को याद करते हैं, तो आई आपने रियली अप्रिशिएट, मुझे अपॉर्चुनिटी याद ली। है आपका फोन आया था और आपने कहा कि लाइक यू वांट टू अटेंड दैट ट्रेनिंग प्रोग्राम बट समहाउ द दैट कॉस्ट वाज द मेजर इशू, बट देन आई थॉट कि बिकॉज मतलब एक चीज मैंने देखी कि बिकॉज यू हैड दिस इंटेंशन और आपकी प्योर इंटेंशन थी सीखने का था और आपको मुझे ऐसा लगा कि शायद आप में वो सीखने की चीज है, तो देन आई थॉट कि चलो यार आप आ जाओ, बट स्टिल यू नो आई डिडंट चार्ज एनीथिंग फॉर अटेंडिंग दैट, बट स्टिल यू पेड फॉर दी ट्रैवल, जो आपने किया आपने उसका अपना खर्चा उठाया ट्रैवल। आप मुझे याद है रुद्रपुर आप आए, उत्तराखंड आए, आप स्पेशल ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए दिल्ली एनसीआर से, आप आई थिंक फरीदाबाद में थे आप, तो फरीदाबाद से आप आए, तो ये भी एक जी चीज मुझे लगती है कि एक मतलब आपके मन में था फायर सीखने का, तो वो एक बोलते हैं कि चीज रास्ते निकल आते हैं। तो फिर आपने ट्रेनिंग आए, मुझे याद है आपने आपने भी काफी अच्छा इनपुट दिया, मैंने आपको मौका भी दिया स्टेज पे जाने का, कुछ थोड़ा आपने 4-5 मिनट जी आपने बड़ा अच्छा एक चीज भी बताई, कुछ डॉक्टर सी पंत करके आपने, डॉक्टर सी जी पंत जी पान जी पीएनटी डॉक्टर सी पंत करके जी आपने एक वर्ड बताया कि 7 प्रोसीजर थे राइट, तो इट वाज वेरी जी। इंटरेस्टिंग। सो बड़ा अच्छा तो लगता लगा मुझे उस समय भी। और ग्रेट, तो मतलब उसके बाद फिर बताइए, जैसे फिर आपने ट्रेनिंग सर प्रोग्राम लिया, आईआईटीएफ का उसके आप बाद, इंटर्न हो गए, हाँ जी सर, फिर उसकी जो बेस्ट लर्निंग्स जो मेरे हम्म, को लगी ना सर, हम्म, तो बेस्ट वे इसकी मतलब लाइफ में, मतलब देर आर एन नंबर ऑफ ट्रेनर्स इन द हम्म, मार्केट, यू कैन टेक एन मतलब ट्रेनिंग्स फ्रॉम एनीवेयर, बट वेरी फ्यू आर, मतलब मैंने तो ओनली मैं आप ही को जानता हूँ जिन्होंने जो प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स पे बेसिकली फोकस करते हैं। दैट एक इंटेंशन होती है ट्रेनर की, दैट आई हैव टू डिलीवर द बेस्ट टू ऑल, इवन टू द लास्ट वन जो पीछे सबसे बैठा है, जिसको नहीं समझ में आ रहा, अगर उसको समझ में आ गया देन एवरीबॉडी इज गेटिंग। दैट वाज योर मतलब आपका जो रहा है, मैं मतलब रियली अप्रिशिएट करता हूँ सर इस चीज के लिए, एंड आई रियली फील गुड। इवन मैं भी कभी ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड करता हूँ तो मेरे मन में भी यही इंटेंशन होती है दैट कि जो वीकेस्ट स्टूडेंट है, इफ ही इज गेटिंग, देन आई थिंक आई एम सक्सेसफुल, आई एम डिलीवरिंग द ट्रेनिंग। तो ये काफी एक अच्छी लर्निंग मिली थी। और जैसे मैंने वो स्किल्स एक्वायर किए सर, तो आफ्टर 1 ईयर मेरे पास बहुत अच्छा, मतलब स्पार्क मिंडा ग्रुप से मेरे पास एक चांस आया, उनकी ग्रुप कंपनी थी, तो I got a hike of around 80% from 20. At last, when I was in Elafric, I was getting 32. From 32 to 55, I got the hike over there. एक्सीलेंट एक्सीलेंट। Yes, sir. मतलब 80% So, आपको हाइक मिला मोहित, मतलब रियली वंडरफुल, जस्ट बिकॉज कि आपने मतलब एक इंटर ऑर्डर ट्रेनिंग प्रोग्राम एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपने मतलब अटेंड किया आपने, और उसके बाद फिर आपने मतलब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा, आपका एप्रेशन मिला, तो ये मतलब हमने और भी हमारे बहुत सारे देखे सब मास्टरी किया, हमारी कम्युनिटी के टेस्टिमोनियल्स हैं जहाँ पे किसी का मतलब 30%, 50%, ऐसे भी हैं जिनके 100% सैलरी हाइक भी हुए हैं, तो ये कई लोग बिलीव नहीं करते इसके ऊपर कि ऐसे मिराकल भी होते हैं कि हाँ यार इतने हाइक मिलते हैं, तो मतलब ये इस पे क्या कहना चाहोगे होते हैं सर। कि मतलब हाइक होते हैं यार, क्योंकि हर बंदा जो होता है वो मतलब होता है जो एम्प्लॉयर है, अगर आपका लाला टाइप कंपनी है जो मतलब सुन रहे हैं अभी ये इंटरव्यू भी, तो मतलब कि जो लाला टाइप कंपनी है वो डेफिनेटली वो पे नहीं करेंगे, लेकिन जो एक स्ट्रक्चर्ड कंपनी है, जो सिस्टमेटिक कंपनी है, जो एक एम्प्लॉय की, एक इंजीनियर की वर्थ जानती है, वो आपको पे करेगी, वो आपको जरूर आपका जो डिजर्व करते हो वो देगी, लेकिन बशर्ते आपकी स्किल, आपका कॉम्पिटेंसी, आपका कॉन्फिडेंस, आपका जो मतलब क्यूएमएस में, आईआईटीएफ में या वट एवर कोर टूल में या जो भी सिक्स सिग्मा टीकेम जो भी चल रहा है, मतलब वो उसमें आपकी काबिलियत होनी चाहिए। तो मतलब इस पे क्या कहोगे कि यार जो लड़के समझते हैं, इंजीनियर समझते हैं नहीं यार ये तो इससे कैसे हाइक हो जाएगा, हम अगर सिस्टमेटिक अगर हम सीख भी लेंगे तो कैसे हाइक मिलेगा, उनके लिए क्या आप सोचते हो या कहना चाहोगे उनको? सर सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपने ऊपर जो है विश्वास होना चाहिए। इफ यू हैव गेन्ड सम स्किल्स, तो जैसे कि अभी हमने रिसेंटली आपकी ट्रेनिंग सेशंस में जो जे सैन ने हमारे को बताया भी, नेगोशिएशन स्किल्स, वो सारी चीजों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट इन माय केस आई कैन टेल, आई विल रिवील दैट पर्सनस नेम, मिस्टर संजय गर्ग। ही इज अ ग्रेट पर्सन ओवर देयर इन Minda, who was looking after various I think 5 to 7 their sub companies, group companies. सो उन्होंने सर, यू विल नॉट इवन मतलब इमेजिन कि मेरे अंदर क्या फीलिंग थी। आई जस्ट आस्क्ड हिम कि सर आई वांट 55K।
I can come to your company, I can join your company if I get 55K. He don't even ask me the second question over that. And very next day I received the offer letter from that company. Excellent, great. So it was some how the he might feel some good in me, that's why he have hired. So ऐसा नहीं है सर, मतलब आपको स्केल जो है अच्छी हाइक्स मिलती है if you have some good in you, if you have acquired some technical skills, you have some presentation skills, then definitely they will going to take you for the good charge. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ग्रेट ग्रेट। ठीक है, तो उसके बाद फिर आप बताइए, जैसे अब जैसे आपका इंटरव्यू हुआ, आपने कॉन्फिडेंटली उसके जवाब दिए, या मतलब डेफिनेटली आपको पसंद किया और आपको 55,000 का हाइक मिला, तो अभी मतलब अभी आपने सब मास्टरी कम्युनिटी में दोबारा, उस वक्त भी आप आई थिंक 5-6 साल पहले से आप जुड़े हुए हैं ऑलरेडी जी हमारे साथ, सर, ये इस अफ्रीकन इन भी। बिटवीन आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग सर। उस बुक का मैं जिक्र करना भूल सकता हूँ सर, द बेस्ट मोटिवेशन विच यू हैव रॉट, और आई रिमेम्बर, मे बी आई फॉरगेट दैट नेम, या हाउ टू स्टे मोटिवेटेड व्हेन स्विमिंग विद शार्क्स। या सो जो बुक आपने सर जो पब्लिश की थी, आई स्टिल रिमेम्बर कि उसका मतलब एक, जब मैंने पढ़ा तो रियली इट मोटिवेट्स मी। सो आज तक सर कभी भी मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मेरा मोरल डाउन हुआ हो। अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। इवन सर कोविड का इम्पैक्ट मेरे ऊपर भी पड़ा। आई वाज अ हाई पेड सैलरी, मतलब पेड सैलरी एम्प्लॉय था, तो मेरे साथ जो है काफी टीम मेंबर्स को जो है कोविड ले ऑफ की वजह से जॉब छोड़नी पड़ी, बट मोरल डाउन नहीं हुआ बिकॉज नंबर ऑफ क्लाइंट्स आई हैड नाउ जो है मैं इंडिपेंडेंटली ऑडिट्स वगैरह कंडक्ट करवा लेता हूँ। जैसे कहीं पे मतलब आपका ऐसे इम्प्लीमेंटेशन करवाना होता है तो किसी टीम के साथ मिल करके उसमें पार्टिसिपेशन करता हूँ, बट आई एम फीलिंग वेरी एनर्जेटिक। So yes, skills इसलिए acquire further I am acquiring TQM skills and lean skills which I have already registered with the sub mastery community. The reason is only simple that I have to learn या the skills I need to enhance. एब्सोल्युटली। Money एक level तक matter सर। जब when I was in my early stage, I remember जब आपको मैंने बताया भी इंसिडेंट कि I was not having the good funds to even take the trainings, but now I have reached to a sufficient level that yes, अरुण सर की जो ट्रेनिंग्स हमने अटेंड करी, जो लर्निंग्स हमारे को मिली, उससे इतना मोटिवेशन तो है that मार्केट में कहीं पे भी चले जाओगे यू विल हैव अ गुड रिस्पेक्ट, गुड सैलरी एंड ऑल। बट अब जो है मनी मैटर नहीं करता सर। अब ये होता है कि हाँ, स्किल्स, एनर्जेटिक्स, यू हैव टू डिलीवर गुड थिंग्स टू द पीपल, यू हैव टू मोटिवेट अदर्स। तो वो सारी चीजें जो है ना, वो कहीं ना कहीं मतलब ऐसा लगता है कि डेली आई एम लिविंग अ सक्सेसफुल लाइफ। तो ये चीज मतलब काफी मतलब टाइम बाद आई, बट इट रियली मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है सर। एब्सोल्युटली ग्रेट। देखिए, आपने 80% हाइक लिया, फिर आपने एक मतलब एक पॉजिटिव माइंडसेट आपने अपना रखा, और एक कंटिन्यूस लर्निंग जो आपने बना के रखी, तो ये आई थिंक ये एक मुझे लगता है इंजीनियर्स के इनहेरेंट क्वालिटी होनी चाहिए। बट समहाउ इंडस्ट्री में ऐसा हो रहा है कि वो समहाउ एक प्रेशर वाला जीवन जो है व्यतीत कर रहा है, चाहे वो उसके परिवार की तरफ से हो या एक एक्सपेक्टेशन जो होती है उससे, और सपोर्ट उतना मिलता नहीं है जिस हिसाब से मतलब ऑर्गेनाइजेशन में ही शुड गेट दी सपोर्ट, दी बॉस एंड सीनियर दे आर नॉट दैट सपोर्टिव, और जो ऑर्गेनाइजेशन है ट्रेनिंग, आई डोंट थिंक दैट विद ड्यू रिस्पेक्ट टू मैनी गुड दोज हु माइट हैव गुड स्ट्रक्चर, बट स्टिल यू नो 1-2 दिन के ऐसे एक स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड वे में अगर कोई चीज़ आप लर्न करा रहे हो और कोई सपोर्ट नहीं है, तो वी आर बेसिकली सब मास्टरी basically want this to change. We want that if engineers, right, they deserve hike, they deserve respect, they deserve appreciation, and that's the reason that Submastery has this mission. So बिल्कुल आपने जो बुक का जिक्र किया वो काफ़ी आई थिंक 2016 में मैंने लिखी थी, और जी हाउ टू स्टे मोटिवेटेड व्हेन स्विमिंग विद शार्क्स, बट या आई एम नॉट यस प्रमोटिंग अभी उसको बहुत ज़्यादा, तो है अमेजोन में, इट इज़ अवेलेबल। या इट्स रियली गुड कि आपको भी उससे फ़ायदा मिला मोहित, आई रियली फील हैप्पी अबाउट दैट। ओके ग्रेट मोहित। तो मोहित अभी जैसे अभी जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो अभी इंजीनियर्स हैं, राइट, दोज हु आर नॉट येट लर्निंग इन अ स्ट्रक्चर्ड वे, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? व्हाट विल यू से टू देम, यू नो दोज इंजीनियर्स दोज हु आर स्केप्टिकल, मींस पता नहीं ये ठीक होगा नहीं होगा, फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा, व्हाट वुड यू लाइक टू लाइक से टू देम? वेरी नंबर वन फर्स्ट थिंग तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सर अभी रिसेंटली हम लोगों ने लर्न किया है कि ट्रस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, बिलीव द प्रोसेस एंड फॉलो द सेम। एब्सोल्युटली। मीन्स हमारे को प्रोसेस के ऊपर बिलीव तो करना होता है। नाउ व्हाट इज द प्रोसेस, किस प्रोसेस के ऊपर हम बिलीव करें? देयर आर एन नंबर ऑफ ट्रेनर्स एन नंबर ऑफ पर्सन जो कि स्किल्स आपको एक्वायर करने के लिए पीछे पड़े हुए हैं। मतलब आई वुड
say this language because कि मतलब आप देखेंगे सर मतलब very I came across n number of trainers जो मतलब जो मेरे पीछे पड़ते थे कि यार मोहित ये अटेंड कर लो तुम ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग हम आपको इस पर्टिकुलर पे के अंदर जो है हम आपको ये पूरा पैकेज जो है हम आपके लिए डिलीवर करते हैं. But the very good thing I would appreciate सब मास्टर कम्युनिटी इज दैट कि एक जो फीलिंग्स जो आपने मतलब हमारे अंदर जगाई पर्टिकुलरली फॉर इम्प्लीमेंटिंग दिस 9 schools. आई Yeah. बिलीव कि सर 2 दिन की ट्रेनिंग, 1 दिन की ट्रेनिंग के अंदर they will just teach you कि ये this thing is there. After that, after 1 day or 2 day training program, the trainer will not going to look after your queries. They will not going to ask you something. But this is a very structured thing जो सब मास्टर कम्युनिटी ने इम्प्लीमेंट किया है कि 9 schools को जो है डेवलप किया है. दैट स्टेप बाय स्टेप वी विल लर्न 1 to 1 थिंग्स कि हाँ हमने जो है अभी जैसे इंटरव्यू स्किल्स के बारे में जाना, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के बारे में जाना. आई कैन से दैट कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ स्किल्स के बारे में जाना. आई नो कि हर हफ्ते, हर दूसरे दिन, तीसरे दिन जो है एक रिव्यू सेशंस होता है जिसके अंदर जो है बकायदा क्वेश्चनरीज पूछे जाते हैं और जिसका बकायदा आपका आंसर भी दिया जाता है. सो दिस इज द वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच, एक स्ट्रक्चर्ड मेथड है सबमेस्ट्री के पास. सो आई वुड से दैट one should follow the guidelines as submaster is delivering the learnings. So I believe that one more thing I would like to add is sir, education के ऊपर खर्चा हुआ पैसा it will never go in vain. Yeah. that I have learned. So अगर nice. हमने अपने स्किल्स के ऊपर पैसा खर्चा है तो वो कहीं वेन में नहीं जाएगा, वहीं पे मतलब व्यर्थ नहीं होगा. So that is one of my learning over here. एब्सोल्युटली मोहित, बेसिकली इन्वेस्टमेंट इज अ लर्निंग राइट. और अगर आप अपनी मतलब अपने देखिए लाइक वन ऑफ आवर मेंबर सेड दिस, उन्होंने ये कहा कि लाइक यू डिसाइड लाइक वेयर आर यू स्पेंडिंग मनी. इफ यू आर स्पेंडिंग मनी अबव नेक और बिलो नेक, आप नेक के नीचे खर्च कर रहे हो यू नो महंगी जीन्स और आईफोन और महंगी वॉचेस एंड मोबाइल, तो मतलब देर इज नो एंड. वो दिखावे का तो कोई एंड नहीं है, यू नो अननेसेसरी. आई हैव सीन पीपल नाउ डेज लाइक दे बाय, young engineers buy stuff which they do not need just to show off, and that too in EMIs. Like, don't think those things depreciate, right? But if there are engineers like who spend above neck, means if they spend in their mindset, if they spend in their learning in a structured way, अगर वो एक accountability और structured way में चीजों को इन्वेस्ट करते हैं, so that is something which will in turn bring everything. वो हर चीज लेके आ जाएगी. यानी अगर आप नेक से ऊपर खर्च करो or where are you investing money below neck, so that said wisely by one of our member. So really Mohit, I appreciate and that's the reason we have this sub mastery quality community. और ये हमारे 9 schools के जो एक continuous हमारी classes हैं और एक पूरे long term programs हैं, because we believe कि like if engineers want this overall knowledge है, उसको पूरा अगर एक trained quality professional एक बनना है या complete quality professional बनना, he need that particular skills, he need those knowledge. That's the reason we have brought this best quality trainers, best trainers from all over India. So yeah, thank you very much, Mohit. I really appreciate, and all the best wishes, for your career, for your projects, right? I really appreciate you to be a part of this community. Thank you very much, Mohit. Thank you, sir. Thank you so much. All the best. Thank you, Mohit. Well.